going to start with the chapter of differentiation. This chapter is the extension of the chapter of differentiation that we have studied in 11th standard. If y equal to fx is a differentiable function of x, differentiable function means जिसको differentiate कर सकते हैं, जिसका derivative find कर सकते हैं, that is known as a differentiable function. Then if function is denoted by y, then derivative is denoted by dy by dx, and if function is denoted by fx, then derivative is denoted by f dash x, is called, what is it called? Derivative of y with respect to x. Derivative of y with respect to x, that is rate of change of y with respect to x. For example, we have an equation like this: y is equal to 2x plus 3. Then we can say as x changes, y also changes. When x is 0, y will be 3. When x is 1, y will be 5. When x is 2, y will be 7. So when x changes, y also changes. In other words, we can say y depends upon x. In other words, we say y depends upon x. Alright? इसको mathematically लिखते हैं. इसको मैथमेटिकली लिखते हैं y डिपेंड्स ऑन x जो है दैट इज कॉमन इंग्लिश. उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x और उसका मैथमेटिकल सिंबल है y इक्वल टू fx. सो व्हेन आई राइट y इक्वल टू fx मींस y इज अ फंक्शन ऑफ x, मींस y डिपेंड्स अपॉन x. इन अदर वर्ड्स, एज x चेंजेस y आल्सो चेंजेस. सो व्हेन आई राइट y इज अ फंक्शन ऑफ x मींस as x changes, y also changes. So what is dy by dx? Dy by dx is called derivative of y with respect to x. We know as x changes, y also changes. So what is dy by dx? The rate of change of y with respect to x. That is the rate at which y changes with respect to x. Alright? ये rate of change के लिए mathematical word है derivative. So rate of change of y with respect to x is known as derivative of y with respect to x. In this, ये नीचे dx है, उसका मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये d का मतलब है डेरिवेटिव. सो हाउ डू वी रीड दिस? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, d फॉर डेरिवेटिव. सो डेरिवेटिव ऑफ y और नीचे dx का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x. सो व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ du by dx? This will mean derivative of u with respect to x. dv by dx will mean derivative of v
with respect to x. dy by du means derivative of y with respect to u. हमारे पास अगर इसका दूसरा मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं, सपोज वी हैव अ लाइन ax1 y1 and bx2 y2, alright, passing through 2 points, then what will be the slope of this line? It will be y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is difference of y upon difference of x, that is same as change of y with respect to x, the rate of change of y with respect to x. जो हम स्ट्रेट लाइन में स्लोप डिनोट करते हैं उसको डिफरेंशिएशन चैप्टर में डेरिवेटिव बोलते हैं. दिस इज स्लोप इन स्ट्रेट लाइन, ऑलराइट, दैट इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, और डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x, दैट इज सेम एज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x. So remember, dy by dx stands for derivative of y with respect to x. Now we'll see the list of formulas जो हमने 11th स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में ऑलरेडी लिखा हुआ है. 11th डेरिवेटिव में हमने 21 फॉर्मूलाज लिखा है. There are 6 more of inverse trigonometric functions which we have to incorporate. List of formulas लिखेंगे, then we'll be doing the problems. Most of these formulas are already derived in 11th standard. एक साइड पे लिखेंगे y और दूसरी साइड पे लिखेंगे dy by dx. फर्स्ट फंक्शन इज x रेज टू n, डेरिवेटिव आएगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. x रेज टू n का डेरिवेटिव होगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. दिस आर ऑलरेडी द फंक्शंस व्हिच वी आर राइटिंग नाउ आर ऑलरेडी डन इन योर 11th स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, ए डिफरेंशिएशन ऑफ 11th स्टैंडर्ड. कैसे याद रखने का इसको? ये करंट पावर जो है n, वो उसको नीचे लेने का और एक पावर कम करने का. ऑलराइट, सो टोपी नीचे कीमत कम. याद कैसे करते हैं इसको? टोपी नीचे कीमत कम. तो क्या होगा x रेज टू 5 का 5 इंटू एक्स रेज टू 4, ये करंट पावर n नीचे लाने का और एक पावर कम करने का. x रेज टू 7 का 7 इंटू एक्स रेज टू 6, x रेज टू 8 का 8 इंटू एक्स रेज टू 7, x रेज टू माइनस 3 का माइनस 3 एक्स रेज टू माइनस 4, x रेज टू 3 बाई 2 का 3 बाई 2 एक्स रेज टू 3 बाई 2 माइनस 1, यानी के 3 बाई 2 एक्स रेज टू हाफ. अब ये एक भी फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर ऑल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. x रेज टू n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. सिमिलरली क्या होगा x क्यूब का डेरिवेटिव 3 इंटू एक्स स्क्वायर, करंट पावर 3 नीचे लाने का और एक पावर कम हो जाएगा. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये 2 नीचे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा. सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स रेज टू 1. इसका डेरिवेशन हमने ऑलरेडी 11th में किया हुआ है. एक्स रेज टू n का डेरिवेटिव n एक्स रेज टू n माइनस 1 यूजिंग योर फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला. ये फॉर्मूला यूज करके हमने ये सब डेरिवेशन किया हुआ है. यहां पे x का पावर कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है तो वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है. ऑलराइट, सिमिलरली क्या होगा? x का डेरिवेटिव x इज एक्चुअली x रेज टू 1, तो आएगा 1 इंटू एक्स रेज टू 0, 1 इंटू एक्स रेज टू 0.
एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो डेरिवेटिव ऑफ x आएगा 1, x का डेरिवेटिव आएगा 1 upon x. 1 upon x is like x raised to -1, तो आएगा -1 x raised to -2, करंट पावर नीचे लाने का और एक पावर कम करने का, दैट इज -1 upon x square. Root x. Now this root x is like x raised to half. तो आएगा half x raised to half -1, that is half x raised to -half, that is 1 upon 2 x raised to half. ये करंट पावर नीचे लेने का और एक पावर कम करने का, x raised to n का n into x raised to n-1, हाफ में से 1 जाएगा तो -half. दिस इज 1 upon 2 root x. रूट x का डेरिवेटिव 1 upon 2 root x. रिपीट करेंगे, x raised to n का n x raised to n-1, x का 1, x square का 2x, x cube का 3x square, 1 by x का -1 by x square, root x का 1 by 2 root x. अब हमने ये जो पहला 6 देखा, they are called algebraic functions. What are they called? Algebraic functions. These are trigonometric functions. अब अगेन ये सब फॉर्मूला हमने ऑलरेडी 11th में लिया हुआ है. sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव sec square x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec square x, sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x, cosec x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. डेरिवेटिव में याद रखेंगे, जब भी फंक्शन c से स्टार्ट होगा आंसर में माइनस साइन आएगा. जब भी फंक्शन c से स्टार्ट होगा आंसर में माइनस साइन आएगा. cos x का माइनस साइन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. नाउ वी आर लुकिंग एट 6 inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions. एक बात क्लियर कर देता हूं स्टार्टिंग में ही, ये साइन इनवर्स एक्स जो है दैट इज नॉट 1 अपॉन साइन एक्स. रिमेंबर दिस, साइन इनवर्स का मतलब 1 अपॉन साइन नहीं होता है. साइन इनवर्स इज नॉट 1 अपॉन साइन, कॉस इनवर्स इज नॉट 1 अपॉन कॉस, tan इनवर्स इज नॉट 1 अपॉन tan. अगर ऐसा होगा x इज इक्वल टू साइन y, देन साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y. ये साइन को इधर से उधर लिया तो साइन का क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स. जैसे एक साइड पे प्लस होगा दूसरी साइड पे माइनस, एक साइड पे मल्टीप्लाई होगा दूसरी साइड पे डिवाइड, एक साइड पे स्क्वायर होगा तो दूसरी साइड पे रूट.
जैसे प्लस का ऑपोजिट माइनस है, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड है, स्क्वायर का ऑपोजिट रूट है, वैसे ही ये साइन इनवर्स जो है वो साइन का ऑपोजिट है। तो साइन को एक साइड से दूसरे साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स। कॉस होगा तो कॉस इनवर्स, टैन होगा तो टैन इनवर्स। ये याद रखेंगे कंसेप्ट, बाद में भी काम आएगा। साइन इनवर्स एक्स इज नॉट 1 अपॉन साइन एक्स, ये याद रखेंगे। एक साइड पे साइन होगा, उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स। कॉस होगा तो कॉस इनवर्स, टैन होगा तो टैन इनवर्स, एंड सो ऑन। नाउ वी राइट द फॉर्मूला। ये जो 6 फॉर्मूला है, दीज आर ओनली फॉर 12th। बाकी सब हमने जो किया था दे आर 11th स्टैंडर्ड फॉर्मूलास। इसमें भी 3 फॉर्मूला याद रखेंगे तो 3 अपने आप याद रहेगा। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 3 याद होगा तो बाकी का 3 ऑटोमेटिकली याद रहेगा। जो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है वही कॉस इनवर्स का, खाली प्लस के बदले माइनस आएगा। ये +1 के बदले -1 अपॉन आएगा। सिमिलरली जो टैन इनवर्स का है वही कॉट इनवर्स का। टैन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, तो कोसेक इनवर्स एक्स का -1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। रिपीट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, कोसेक इनवर्स एक्स का -1 अपॉन जब भी फंक्शन c से स्टार्ट होगा आंसर में माइनस आएगा। जब भी फंक्शन c से स्टार्ट होगा आंसर में माइनस साइन आएगा। नाउ वी कम टू फॉर्मूला नंबर 19। k इज अ कांस्टेंट। ये चैप्टर में 2 वेरिएबल्स है, हमने लिखा था एज एक्स चेंजेस y ऑल्सो चेंजेस, यानी कि जब x चेंज होगा y भी चेंज होगा। ऑलराइट, जो चेंज होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल, जो चेंज होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या होता है, जो चेंज नहीं होता है। सो कांस्टेंट k इज अ टर्म नॉट कंटेनिंग x and y. Constant is a term not containing variable, means constant is a term not containing x and y. So 3 is a constant because 3 does not contain x, does not contain y. 30 is a constant, -30 constant, 5.7 constant, 3.8 constant, 3 upon 5 constant, root 2 is constant. Then log a, log 30 और log 35 is also constant because ये सब में ना x है ना y है। ऑलराइट, a is a constant, a square constant, a cube constant because a is a constant. ऑलराइट, root a constant, sin a constant, log a constant. Constant is a term not containing x and y, जिसमें x भी नहीं होगा और y भी नहीं होगा, that is known as a constant. So these are all numbers are constant, all numbers whether positive, negative, in fractions, alright, they are all constant. All alphabets except x and y are also constant.
all alphabets except x and y. So a is a constant, b is a constant, c is a constant, alpha is a constant, beta is a constant. Because a constant है, a square भी constant, a cube भी constant, root a भी constant, sin a constant. Similarly b square, b cube, root b, cos b, tan inverse b are also constant. अभी 11th में किया था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0. इसमें याद रखेंगे बिकॉज a इज अ कांस्टेंट, उसका पूरा फैमिली भी कांस्टेंट. फैमिली ऑफ a का मतलब जिसमें सिर्फ a और उसका फंक्शन ऑफ a होगा, मतलब a स्क्वायर, a क्यूब, रूट a, साइन a, लॉग a, tan इनवर्स है. सिमिलरली b कांस्टेंट है तो b स्क्वायर, b क्यूब, रूट b, साइन b, tan इनवर्स b भी कांस्टेंट. क्या होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. सो -30 का डेरिवेटिव 0, 5.7 का 0, 3.8 का 0, 3/5 का 0, √2 का 0, √x का 1/2 √x आएगा, √2 का 1/2 √2 नहीं आएगा. log 35 का क्या आएगा 0, a का 0, b का 0, c का 0, अल्फा का 0, बीटा का 0, b स्क्वायर का x स्क्वायर का 2x होगा, b स्क्वायर का 2b नहीं होगा. b स्क्वायर का 2b लिखेंगे तो मार्क्स नॉट 2b हो जाएगा. सो b स्क्वायर का 0 आएगा, b क्यूब का 0 आएगा, रूट b का 0 आएगा, साइन a का cos a नहीं आएगा, साइन x का cos x होगा लेकिन साइन a का 0, cos b का माइनस साइन b नहीं होगा, cos x का माइनस साइन x होगा लेकिन cos b का आएगा 0. सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. कांस्टेंट मींस जो चेंज ही नहीं होता है. ऑलराइट, तो चेंज नहीं होता है तो स्लोप 0 हो जाएगा. ऑलराइट, तो dy by dx 0 हो जाएगा. अभी याद रखेंगे कांस्टेंट का डेफिनेशन. कांस्टेंट इज अ टर्म नॉट कंटेनिंग x एंड y. नंबर 10, इनफैक्ट 20. log x to the base e का डेरिवेटिव होगा 1/x. ये आपको मालूम है, किया है हमने अपना 11th में लॉगरिथम्स में, कि जब भी log का बेस नहीं लिखा जाएगा बेस e गिना जाएगा. whenever base is not written it is taken as e. so when I write this way log 5, when I write log 5 it actually means log 5 to the base e. When I write log 3, it means log 3 to the base e. So log x का डेरिवेटिव 1/x आएगा provided base is e. अगर बेस कुछ नहीं लिखा है तो बेस e गिनने का. तो यहां पे अगर बेस नहीं लिखेंगे तो बेस e गिना जाएगा. a raised to x, a raised to x, ये इसको सिमिलर है लेकिन डिफरेंट है. This is v raised to c, whereas this is c raised to v. का मतलब है ये है बेस वेरिएबल और पावर कांस्टेंट, whereas ये है बेस कांस्टेंट और पावर वेरिएबल. तो ऑब्वियसली ये वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल है, तो दोनों का डेरिवेटिव सेम नहीं आएगा. तो क्या होगा फॉर्मूला, ये हमने अगेन 11th में किया हुआ है. a रेस टू x का डेरिवेटिव a रेस टू x log a. कंडीशन आएगा a ग्रेटर देन 0. आंसर log का कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो वी मेक श्योर दैट इट रिमेन्स पॉजिटिव, a ग्रेटर देन 0. तो क्या होगा 2 रेस टू x का डेरिवेटिव 2 रेस टू x log 2, a रेस टू x का a रेस टू x log a. क्या होगा 5 रेस टू x का 5 रेस टू x log 5. क्या होगा 7 रेस टू x का 7 रेस टू x log 7. जो भी बेस में नंबर होगा पीछे उसका लॉग आएगा. 5 होगा तो log 5, 2 होगा तो log 2. 2 रेस टू x मेंटेन करने का. नेक्स्ट 22. एक्चुअली इसका फॉर्मूला ये आएगा e रेस टू x का e रेस टू x log e.
ई रेस टू, जैसे ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स लॉग ए है, वैसे ही ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स लॉग ई है। यहां पे इसका बेस क्या है, लॉग ए का ई होगा, वैसे ये लॉग ई का बेस भी ई होगा। एंड वी नो दैट log e टू द बेस e इज 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर आएगा e रेस टू x का e रेस टू x। ये 4 फॉर्मूला रिपीट करेंगे। k का आएगा 0, log x का आएगा 1/x, a रेस टू x का आएगा a रेस टू x log a, 2 रेस टू x का आएगा 2 रेस टू x log 2, 5 रेस टू x का आएगा 5 रेस टू x log 5 टू द बेस e, 7 रेस टू x का आएगा 7 रेस टू x log 7। अब ये जो हमने ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो फंक्शंस लिखा है ना 22, दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड फंक्शंस। ये जो 22 फंक्शंस है दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड फंक्शंस। स्टैंडर्ड फंक्शन का डेफिनेशन ऐसा है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव डायरेक्टली फॉर्मूला लिस्ट से मिलेगा, ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव डायरेक्टली फॉर्मूला लिस्ट से मिलेगा। तो हमारा जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिस्ट में जो भी फंक्शंस है दे आर कॉल्ड स्टैंडर्ड फंक्शंस। नाउ वी आर राइटिंग द रूल्स। ये जो हमने लिखा है 22, दे आर डेरिवेटिव ऑफ इंडिविजुअल फंक्शन, ऑलराइट। लेकिन एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x, 4 मार्क्स, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ऑलराइट। व्हाट दे विल डू इज कंबाइन डिफरेंट फंक्शंस, मेक अ प्रॉब्लम एंड टेल यू टू फाइंड डेरिवेटिव। सो वी कैन कंबाइन द फंक्शन इन 4 ways. We can add them, subtract them, multiply them and divide them. So we are having rules for addition, subtraction, multiplication, multiplication of 3 functions, division and k into u. These are the rules. These are the rules. The formula is u plus or minus v का आएगा, the formula is du by dx plus or minus dv by dx। मतलब ये जो हमारा डेरिवेटिव साइन है उसका सिंबल ये है, आपको मालूम है, d upon dx। तो ये जो प्लस माइनस जब भी होगा ना तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाएगा, मतलब डेरिवेटिव साइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट प्लस और माइनस डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड। जैसे हमारा एलजेब्रा में रूल है ना k इंटू ए प्लस बी होगा तो आएगा k इंटू ए k इंटू बी, ये k मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वैसे ही डेरिवेटिव साइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो जब भी टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा we'll use distributive property. What do you mean by this? Derivative of u with respect to x plus or minus derivative of v with respect to x. अब ये रूल जो है ये सिर्फ 2 फंक्शन के लिए नहीं है, अगर 3 फंक्शन होगा तो 3 डेरिवेटिव में स्प्लिट होगा। By the way, here u, v, w are any functions out of these. ये 22 में से कोई भी एक फंक्शन को u, दूसरे को v, तीसरे को w लिया है, ऑलराइट। दीज आर ऑल फंक्शंस ऑफ x। u and v आर नॉट कांस्टेंट्स हियर, दे आर फंक्शंस ऑफ x। सो जब भी टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा वी हैव टू अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट प्लस और माइनस डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड, प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस, अगर इधर भी माइनस होगा तो माइनस आएगा।
u into v. The formula is u as it is, derivative of v, v as it is, derivative of u. यानी के दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा तो पहले फंक्शन को एज इट इज रखने का, दूसरे का डेरिवेटिव लेने का, फिर दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखने का, पहले का डेरिवेटिव लेने का. u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज, u का डेरिवेटिव. uv w होगा तो आएगा uv एज इट इज, w का डेरिवेटिव प्लस uw एज इट इज, v का डेरिवेटिव एंड vw एज इट इज, u का डेरिवेटिव. इधर पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव. इसमें तीन फंक्शन है तो पहला दूसरा सेम रखने का, तीसरे का डेरिवेटिव, पहला तीसरा सेम, दूसरे का डेरिवेटिव एंड दूसरा तीसरा सेम, पहले का डेरिवेटिव. uv w का डेरिवेटिव, uw v का डेरिवेटिव, vw u का डेरिवेटिव. नाउ u अपॉन v. अब इसमें डिनोमिनेटर में v स्क्वायर आएगा. u अपॉन v के फॉर्मूला में नीचे v स्क्वायर आएगा. अभी याद रखेंगे ये v तो इधर v स्क्वायर, और न्यूमरेटर में इसका उल्टा आएगा. इधर v है तो इधर v स्क्वायर, ऑलराइट. इधर v है तो इधर v स्क्वायर एंड इधर v स्क्वायर है तो फॉर्मूला v से स्टार्ट होगा. ऐसे याद रखेंगे. क्वेश्चन में नीचे v है तो आंसर में नीचे v स्क्वायर आएगा. इधर v है तो आंसर में v स्क्वायर आएगा. इधर v स्क्वायर है तो फॉर्मूला v से स्टार्ट होगा. v के साथ आएगा डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u के साथ आएगा डेरिवेटिव ऑफ v. नाउ k इंटू यू. रिमेंबर दिस, कांस्टेंट अगर अकेला होगा तो डेरिवेटिव जीरो आएगा. k इंटू यू होगा तो जीरो नहीं आएगा. k इंटू यू का k विल रिमेन एज इट इज एंड वेरिएबल का डेरिवेटिव हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर डेरिवेटिव ऑफ 5 sin x है, अगर सिर्फ 5 होगा तो डेरिवेटिव जीरो आएगा. लेकिन 5 sin x में 5 का जीरो करने का नहीं, ये 5 को बाहर ले लेने का एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x. ये 5 को बाहर ले लेने का या तो 5 को एज इट इज रखने का जैसा है वैसे ही एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x. तो आंसर आएगा 5 cos x. sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा. अब ये क्या क्या कॉमन सेंस की बात है. व्हाट इज sin x का डेरिवेटिव? cos x. तो लेफ्ट हैंड साइड को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 5 sin x का आएगा 5 cos x. 3 sin x होगा तो 3 cos x. 3 tan x होगा तो 3 sec square x. 7 tan x होगा तो 7 sec square x. 7 इंडिविजुअल रहेगा तो 0 आएगा, लेकिन 7 tan x होगा तो 7 tan x का 7 sec square x हो जाएगा. 7 will remain as it is and tan x का डेरिवेटिव. सो k into u का डेरिवेटिव आएगा k into du by dx. So these are the list of formulas. रिपीट करता हूं मैं. u प्लस और माइनस v का आएगा du by dx प्लस और माइनस dv by dx. u into v का u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u. uv w का uv डेरिवेटिव ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू x. uw डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x. vw डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x. u अपॉन v. v du by dx माइनस u dv by dx अपॉन v स्क्वायर. k into u का k into du by dx. ये सिर्फ ये जो फॉर्मूला है 13 से 18 वो ही नया है. बाकी का जो फॉर्मूला है दे आर ऑलरेडी देयर इन 11th स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन. नाउ विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स.
जैसे 11th स्टैंडर्ड में हमने टाइप 1 जो था, फर्स्ट टाइप, दैट वाज डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। सिमिलरली इधर भी टाइप 1 जो है वो डिफरेंशिएशन जो है ऑफ डिफरेंशिएशन का टाइप 1, दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूलास। तो वो हम बाद में करेंगे। विल स्टार्ट विद टाइप 2। टाइप 2 में हेडिंग लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और फाइंड dy by dx। एग्जाम में क्वेश्चन ये दो मेथड से पूछ सकते हैं, आइदर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x और फाइंड dy by dx। ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x का मीनिंग है ये डेरिवेटिव विथ डिफरेंशिएट का मतलब होता है टू टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मैथमेटिकल सिंबल डी अपॉन डी एक्स है। सो दोनों साइड पे डी अपॉन डी एक्स लिखने का। क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू x रेज टू 6 माइनस 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर। बेसिकली ये जो टाइप 2 है ना, दैट इज रिवीजन ऑफ 11th स्टैंडर्ड डेरिवेटिव। ये 11th स्टैंडर्ड डेरिवेटिव का हम रिवीजन कर रहे हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये डिफरेंशिएट जो है ना वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, उसका शॉर्ट फॉर्म है ये। दिस यू कैन यूज एनीवेयर, ऑलराइट। जहां भी डिफरेंशिएट लिखना है आप ये लिख सकते हो, डिफरेंशिएट का शॉर्ट फॉर्म DIFF। उसका मतलब क्या, दोनों साइड पे d अपॉन dx लेने का। तो y ऑलरेडी है, ये y ऑलरेडी है, बाजू में लिखेंगे d अपॉन dx, और इधर भी लिखेंगे d अपॉन dx। दोनों साइड पे d अपॉन dx लिखा। अब इधर बीच में कौन सा साइन है, माइनस एंड प्लस। जब भी टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा, वी हैव टू यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो वी अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दो टर्म होगा तो दो डेरिवेटिव में स्प्लिट, तीन टर्म होगा तो तीन डेरिवेटिव में स्प्लिट। तो अभी अब ये k इंटू यू है, k इंटू यू मतलब 27th फॉर्मूला। तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, ये कांस्टेंट है 4, तो वो बाहर आ जाएगा। 7 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। अब क्या होगा, x रेज टू 6 का 6 इंटू एक्स रेज टू 5, टोपी नीचे कीमत कम, पहला फॉर्मूला 6 इंटू एक्स रेज टू 5। देन ये 4 एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 7 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो आंसर आएगा, जैसे ही हमने x रेज टू 6 के बदले 6x रेज टू 5 लिखा, फिर आगे ये d बाई dx का साइन करने का नहीं, x क्यूब का 3x स्क्वायर लिखा, फिर d बाई dx का साइन करने का नहीं। This is the answer of the first question. जब भी टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा, we have to use distributive property. Derivative of the first, 4 will come out, derivative of the second, 7 will come out, derivative of the third. ये 4 as it is रखने का, 7 as it is, x raised to 6 का 6x raised to 5, x cube का 3x square and x square का 2x। खाली थोड़ा सिंप्लीफाई किया, is the answer. Question number 2.
क्वेश्चन 2, y इक्वल टू x रूट x प्लस रूट x। हम फॉर्मूला लिस्ट में देखेंगे ना, तो फॉर्मूला लिस्ट में x का डेरिवेटिव 1 है और रूट x का 1/2 रूट x है। फॉर्मूला लिस्ट में पहला फॉर्मूला है, सॉरी फॉर्मूला नंबर 2 इज x का डेरिवेटिव 1 एंड रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। लेकिन x रूट x का कोई फॉर्मूला नहीं है, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर x रूट x। प्लीज नोट, ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग। अरे क्वेश्चन का प्रोडक्ट और आंसर का प्रोडक्ट ऐसा होता नहीं है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ these two and multiplication of these two is not the answer. Alright. Similarly, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x है, तो 1/रूट x का डेरिवेटिव 2 रूट x नहीं आएगा, ये भी गलत है। क्वेश्चन का उल्टा तो आंसर का उल्टा, ऐसा भी कोई रूल नहीं है। ये राइट है, रूट x का 1/2 रूट x, लेकिन 1/रूट x का 2 रूट x नहीं हो जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन का रेसिप्रोकल तो आंसर का रेसिप्रोकल, ऐसा रूल नहीं है। ऑलराइट, तो ये दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है हमारे पास डायरेक्ट, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। व्हाट इज x रूट x? x root x is x raised to 1 into x raised to half, that is x raised to 1 plus half, that is x raised to 3/2, and 1/root x is 1/x raised to half, that is x raised to minus half. तो इसका एक्सप्लेनेशन इधर है। ऑलराइट, अब ये दोनों हमारा फॉर्मूला नंबर 1 के जैसा हो गया, दोनों x रेज टू n टाइप का हो गया। बीच में प्लस साइन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 3/2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू -1/2, ये दोनों x रेज टू n टाइप का है। तो क्या होगा डेरिवेटिव? n इंटू x रेज टू n-1, यानी कि टोपी नीचे कीमत कम। सो 3/2 x रेज टू 3/2 -1, और इधर आएगा -1/2, जो करंट पावर है उसमें से एक कम करने का, इधर करंट पावर -½ है, सो दिस विल बिकम 3/2 x रेज टू हाफ एंड -1/2 x raised to -3/2. x raised to half is root x, and ये नेगेटिव पावर को नीचे ले लेंगे तो +3/2 हो जाएगा। ये दोनों का फॉर्मूला लिस्ट में नहीं है फॉर्मूला, तो उनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, और बाद में हमने सिर्फ x रेज टू n वाला फॉर्मूला यूज किया है। x रेज टू n का डेरिवेटिव ये दोनों x रेज टू n टाइप का हो गया, n into x raised to n-1. Now we come to problem number 3. Question 3. हमारे पास log x का डेरिवेटिव है 1/x, लेकिन बेस होना चाहिए e। यहाँ पे बेस ही दिया नहीं है, बेस 5 दिया है, तो विल यूज
change of base theorem. We'll apply change of base theorem. Again 11th standard logarithms में था ये log m to the base n is log m upon log n. Alright, this is change of base theorem. So we can now differentiate with respect to x. क्या होगा? बीच में प्लस साइन है तो 3 डेरिवेटिव में स्प्लिट हो जाएगा. ये जो है ना log x अपॉन log 5, उसको ऐसे लिख सकते हैं, is like 1 by log 5 into log x. Now this is like k into u. This is k and this is u. So this is k into u. We know 5 is a constant. So log 5 is also constant. So log 5 constant है तो 1 by log 5 भी constant हो जाएगा. And constant can be taken outside. Alright, तो ये log 5 constant को बाहर ले लिया. अब क्या आएगा? 5 raised to x का डेरिवेटिव 5 raised to x into log 5. We are using a raised to x वाला फॉर्मूला. a raised to x into log a. 5 raised to x का 5 raised to x log 5. 5 into x raised to 4 and 1 by log 5 as it is. log x का 1 by x. आंसर आएगा 5 raised to x log 5. 5x raised to 4 1 upon x log 5 is the answer. ये प्रॉब्लम नोट्स में सॉल्व दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 4. पहले 3 प्रॉब्लम में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल प्रैक्टिस किया. अब 2 प्रॉब्लम में हम u इंटू वी रूल प्रैक्टिस करेंगे. दिस इज प्रोडक्ट. सो u इंटू वी क्या फॉर्मूला है? u इंटू वी का u एज इट इज v का डेरिवेटिव, v एज इट इज u का डेरिवेटिव. सो पहला फंक्शन एज इट इज रखने का, दूसरे का डेरिवेटिव लेने का, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज रखने का, पहले का डेरिवेटिव लेने का. u जैसा है वैसे ही रखने का, v का डेरिवेटिव लेने का, फिर v जैसा है वैसे ही रखने का, u का डेरिवेटिव लेने का. अब याद रखेंगे जहां पे डेरिवेटिव का साइन होगा वहां पे ही फॉर्मूला अप्लाई करने का. तो इधर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इधर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ये दोनों टर्म को टच नहीं करने का. ये टर्म और ये टर्म एज इट इज रहेगा क्योंकि उनके साथ डेरिवेटिव का साइन नहीं है. तो अब क्या आएगा? 7 raised to x एज इट इज. सेक इनवर्स x का 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x रूट x स्क्वायर माइनस 1. सेक इनवर्स x एज इट इज एंड 7 raised to x इंटू log 7. अब ये 7 raised to x दोनों में है तो वो कॉमन निकाल लेंगे. 7 raised to x ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन
x root of x square minus 1 plus sec inverse x into log 7 is the answer. Number 5. Basically, these are revision of 11th standard derivative. Question 5. X square plus 3x into log x. Even this is solved in the notes. We'll now differentiate with respect to x. This is again product. This is again u into v. So formula है u as it is, v का derivative x square plus 3x as it is, derivative of log x, and log x as it is, derivative of x square plus 3x. This will be पहला function as it is, दूसरे का derivative, दूसरा function as it is, पहले का derivative. अब ये as it is, log x का आएगा 1 by x, यहां पे log x as it is. अब यहां पे इसका जो derivative है वो ऐसे भी ले सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड. लेकिन ये स्टेप जो है वो बेबी स्टेप है. ये स्टेप अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा. तो व्हाट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये 3 कांस्टेंट एज इट इज रखने का, एंड x का डेरिवेटिव 1. सो अभी याद रखेंगे जब भी टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस आएगा स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डेरिवेटिव. एक्स स्क्वायर का 2x, 3 एज इट इज, एंड x का 1. इधर भी वही आएगा 2x एंड 3 इंटू 1 ही आएगा. ऑलराइट, अब यहां से वी कैन रिमूव x कॉमन. प्लीज नोट, ये x और 2x मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये x लॉग के अंदर है. तो ये x इंटू 2x करके 2x स्क्वायर करने का नहीं. ऑलराइट, तो वो 2x प्लस 3 को आगे लिखेंगे. दिस x एंड x गेट्स कैंसल्ड. आंसर आएगा x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 इंटू लॉग x. This is the value of dy by dx is the answer. Now we come to question 6. तो हमने 2 प्रॉब्लम में प्रोडक्ट रूल प्रैक्टिस किया. अब 2 प्रॉब्लम में हम u अपॉन v रूल प्रैक्टिस करेंगे. क्या फॉर्मूला है u अपॉन v का? डिनोमिनेटर में आएगा v स्क्वायर, न्यूमरेटर में इधर v स्क्वायर है तो फॉर्मूला v से स्टार्ट होगा. तो v के साथ डेरिवेटिव ऑफ u एंड u के साथ डेरिवेटिव ऑफ v. ये 5th प्रॉब्लम जो है वो नोट्स में सॉल्व है. ऑलराइट, क्वेश्चन 6. Three minus sin x upon 1 plus 3 sin x will now differentiate with respect to x.
दिस इज लाइक u अपॉन v। तो डिनोमिनेटर में v स्क्वायर आएगा, तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस 3 साइन एक्स द होल स्क्वायर आएगा। इधर v स्क्वायर है तो फॉर्मूला v से स्टार्ट होगा, सो 1 प्लस 3 साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस साइन एक्स माइनस ये v एज इट इज u का डेरिवेटिव, अब u एज इट इज v का डेरिवेटिव। प्लीज नोट, ये तीन टर्म के साथ ये v स्क्वायर, ये v और u, ये तीन टर्म के साथ डेरिवेटिव का साइन नहीं है, तो वो तीन टर्म को टच करने का नहीं। दिस विल नाउ बिकम 1 plus 3 sin x the whole square, न्यूमरेटर 1 plus 3 sin x, 0 minus cos x, बीच में माइनस साइन है तो 3 कांस्टेंट का 0 आएगा, sin x का cos x, इधर 3 minus sin x एज इट इज, 1 का 0 एंड 3 sin x का 3 एज इट इज, sin x का cos x। प्लीज नोट द डिफरेंस, ये 3 का 0 होगा, इधर 3 का 0 करने का नहीं, ये 3 का 0 नहीं होगा, दिस इज k इंटू यू, दिस 3 sin x इज k इंटू यू, सो k विल रिमेन एज इट इज, 3 का 3 ही रहेगा और sin x का cos x बन जाएगा। अब ये ब्रैकेट सिर्फ ओपन करेंगे, दिस विल बिकम 1 प्लस 3 sin x इंटू माइनस cos x एंड 3 माइनस sin x इंटू 3 cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 sin x द होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 1 प्लस 3 sin x द होल स्क्वायर, क्या आएगा माइनस cos x माइनस 3 sin x cos x, देन माइनस 9 cos x एंड माइनस माइनस प्लस 3 sin x cos x। तो ये माइनस 3 sin x cos x प्लस 3 sin x cos x कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा माइनस 10 cos x अपॉन 1 प्लस 3 sin x द होल स्क्वायर इज द आंसर। u अपॉन v का फॉर्मूला है v du by dx माइनस u dv by dx अपॉन v स्क्वायर। इधर v है तो इधर v स्क्वायर, इधर v स्क्वायर है तो फॉर्मूला v से स्टार्ट होगा, तो v एज इट इज u का डेरिवेटिव, u एज इट इज v का डेरिवेटिव। तो ये तीन टर्म को टच नहीं करने का, 3 का 0 हो जाएगा, sin x का cos x, इधर 1 का 0 हो जाएगा, 3 विल रिमेन एज इट इज एंड sin x का cos x। सेवेंथ, दिस इज अगेन u अपॉन v, तो डिनोमिनेटर में cos x प्लस sin x द होल स्क्वायर आएगा, न्यूमरेटर में cos x प्लस sin x के साथ डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x माइनस cos x माइनस sin x के साथ डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस sin x, दिस विल बिकम दिस विल बी, ये टर्म एज इट इज रहेगा, cos x प्लस sin x एज इट इज,
cos x का माइनस साइन x, माइनस एज इट इज साइन x का cos x, एंड cos x माइनस साइन x एज इट इज, ये 1 2 3 टर्म को टच नहीं करने का, cos x का माइनस साइन x का cos x, इधर माइनस साइन x प्लस cos x. नाउ वी कैन रिमूव माइनस साइन कॉमन, यहां से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहां से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो वो माइनस इधर आगे लिख दिया, ये एज इट इज रखा है. इधर क्या आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा. अब बीच में कौन सा साइन है, प्लस, तो हम ये दो टर्म्स को इंटरचेंज करेंगे तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सो इट विल रिमेन द सेम. साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखो या cos x plus sin x, it is the same only. And इधर अब ये माइनस जो है दोनों में प्रेजेंट है तो न्यूमरेटर से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉमन लेंगे. व्हाट इज दिस, cos x plus sin x into cos x plus sin x, so it will become cos x plus sin x the whole square, and minus common ले लिया and again इधर cos x minus sin x the whole square divided by, अब हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला. ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास ये फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला है, cos थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर इज 1 प्लस साइन 2 थीटा, और अगर माइनस होगा तो माइनस आएगा. सो न्यूमरेटर बन जाएगा माइनस एज इट इज रखेंगे 1 प्लस साइन 2x और इधर 1 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को कभी टच करना ही नहीं है, वो एज इट इज रखेंगे. ये cos x प्लस साइन x द होल स्क्वायर के बदले 1 प्लस साइन 2x लिखेंगे और cos x माइनस साइन x द होल स्क्वायर के बदले 1 माइनस साइन 2x, तो ये साइन 2x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो आंसर आएगा माइनस 2 अपॉन cos x प्लस साइन x द होल स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx. ये दो प्रॉब्लम हमने जो किया दे वर ऑफ u अपॉन v टाइप. सो विद दिस we complete the revision of 11th standard differentiation. 11th differentiation का revision जो है वो complete हो गया. Alright, now we start with 12th standard differentiation. That is, the first topic there is composite function. So we continue with composite function. Alright, of this is the first chapter of first topic of 12th standard. We start with the definition. If y is a function of u and u is a function of x, if y is a function of u means y depends on u and u depends on x,
y is a function of u का मतलब y depends on u and u depends on x. So y depends on u and u depends on x means indirectly y depends on x. Y depends on u depends on x means indirectly y depends on x. This indirect type relation is known as composite function. This indirect type relation, y is a function of u means y depends on u and u depends on x. So y becomes a composite function of x through u. U is the common variable. Y becomes a composite function of x through u. U is the common variable. So y depends on u depends on x, then y becomes a composite function of x. Alright? अभी ये कंपोजिट फंक्शन का मैथमेटिकल डेफिनेशन है. अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे याद रखने का. We'll understand with the help of an example. We'll understand with the help of an example. Functions are of two types. One is standard function, another is composite function. स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव हमारे फॉर्मूला लिस्ट में है. देयर आर 22 स्टैंडर्ड फंक्शंस. जो फॉर्मूला लिस्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे जो फंक्शंस है ना, दे आर नोन एज स्टैंडर्ड फंक्शंस. नाउ अब जो फंक्शन स्टैंडर्ड नहीं है वो कंपोजिट है. अभी याद रखेंगे, सिंपल टू रिमेंबर. पहले स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होगा वो मालूम होना चाहिए, तो कंपोजिट फंक्शन क्या है वो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा. तो फॉर एग्जांपल हमारे फॉर्मूला लिस्ट में है sin x का डेरिवेटिव है cos x, लेकिन ये sin x नहीं है. दिस इज sin of 3x plus 4. मतलब ये फंक्शन जो है ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है. दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड फंक्शन. अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो क्या होना चाहिए? कंपोजिट. ऑलराइट? तो प्रॉब्लम देख के समझना चाहिए कि फंक्शन स्टैंडर्ड है कि कंपोजिट. उसके लिए फॉर्मूला लिस्ट में जो लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शंस है वो फंक्शन मालूम होने चाहिए. ऑलराइट? नाउ से फॉर एग्जांपल, अब सेम एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन. व्हाट इज द आउटर फंक्शन? साइन. जब भी आउटर फंक्शन साइन होगा ना, साइन एक्स से कंपेयर करने का. इसको कंपेयर करो साइन एक्स से. ये साइन एक्स नहीं है. अगर साइन एक्स नहीं होगा तो लिख सकते हैं साइन यू, where sin as it is. What is u? 3x plus 4. So now can we say, ये sin as it is रखा, ये अंदर जो टर्म है उसको u ले लिया. So now can we say y depends on u and u depends on x. So when y depends on u and u depends on x, it becomes a composite function. Alright? I can now say, therefore, सो पहले आउटर फंक्शन देखने का. अगर साइन होगा तो या तो साइन एक्स बनेगा या तो साइन यू बनेगा. अगर कॉस होगा तो या तो कॉस एक्स बनेगा या तो कॉस यू बनेगा. टैन होगा तो टैन एक्स बनेगा या तो टैन यू बनेगा. अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल्स. अगेन वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द आउटर फंक्शन. ये सब में आउटर फंक्शन क्या है? साइन. जब भी आउटर फंक्शन साइन होगा
तो साइन एक्स से कंपेयर करने का, वी कंपेयर इट विथ y इक्वल टू साइन एक्स। ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है साइन एक्स। अब पूछो अपने आप से, इसमें से क्या एक भी साइन एक्स है क्या? साइन एक्स नहीं है। अगर साइन एक्स नहीं होगा ना तो साइन यू ही होना चाहिए। ये सब है y इक्वल टू साइन यू, वेयर u इज, पहले में u है log x, दूसरे में u है रूट x, तीसरे में u है x क्यूब माइनस 7 कंपेयर करने का u का वैल्यू, चौथे में u है tan इनवर्स x, और पांचवे में u है e रेस टू x। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है और ये कंपोजिट फंक्शन है। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। क्या फर्क है? स्टैंडर्ड में जहां x है, कंपोजिट में वहां u आएगा। ये स्टैंडर्ड और कंपोजिट जो है ना वो ट्विन्स है, सिमिलर, राइट? सिर्फ एक ही फर्क है, स्टैंडर्ड में जहां x आएगा कंपोजिट में वहां u आएगा। स्टैंडर्ड में जहां x आएगा कंपोजिट में वहां u आएगा, where u is any function of x। यहां पे लिखा है u is a function of x। वो फंक्शन ऑफ x समझाने के लिए ये 5 अलग अलग एग्जांपल दिए हैं। u can be log x, root x, x cube minus 7, tan inverse x, e raised to x। In general, u is any function of x। तो मैथमेटिक्स की दुनिया में there are 22 standard functions, so there will be 22 composite function। स्टैंडर्ड में जहां x होगा कंपोजिट में वहां u आएगा। स्टैंडर्ड और कंपोजिट में एक ही फर्क है, स्टैंडर्ड में जहां x होगा कंपोजिट में वहां u आएगा, where u is any function of x। तो sin x का बनेगा sin u, cos x का कंपोजिट बनेगा cos u, tan x का बनेगा tan u, साइन इनवर्स x का बनेगा साइन इनवर्स u, कॉट इनवर्स x का बनेगा कॉट इनवर्स u, सेक इनवर्स x का बनेगा सेक इनवर्स u। सिर्फ जहां x है वहां u लिखने का। e रेस टू x का बनेगा e रेस टू u, a रेस टू x का बनेगा a रेस टू u, log x का बनेगा log u, रूट x का बनेगा रूट u, x स्क्वायर का बनेगा u स्क्वायर, x क्यूब का बनेगा u क्यूब, एंड x रेस टू n का बनेगा u रेस टू n। ये स्टैंडर्ड फंक्शंस है और ये साइड पे कंपोजिट फंक्शन है। ये स्टैंडर्ड है और ये कंपोजिट है। सिर्फ एक ही फर्क है, स्टैंडर्ड में जहां x आएगा वहां u आएगा, x के बदले u। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ऑलराइट, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज जो इनर फंक्शन है दैट डज नॉट डिसाइड। जो अंदर वाला फंक्शन है वो गवर्निंग नहीं है, जो बाहर वाला फंक्शन है वो गवर्निंग है। बाहर अगर साइन होगा तो साइन यू बनेगा, कॉस होगा तो कॉस यू बनेगा, लॉग होगा तो लॉग यू बनेगा, टैन इनवर्स होगा तो टैन इनवर्स यू बनेगा। बाहर का फंक्शन जो है दैट इज द वन विच डिसाइड्स। नाउ वी राइट फ्यू मोर एग्जांपल्स। कंपेयर करने का, आउटर फंक्शन से कंपेयर करो। व्हाट इज द आउटर फंक्शन? कॉस, ये कॉस एक्स है कि कॉस यू है? दिस इज नॉट कॉस एक्स बट कॉस यू, वेयर यू इज इक्वल टू लॉग एक्स। कॉट रूट एक्स क्या है आउटर फंक्शन? कॉट। तो ये पूछो अपने आप से, कॉट एक्स है कि कॉट यू है? This is not cot x but cot u, where u is equal to root x. Fourth, sec e raised to x क्या है आउटर फंक्शन? sec। तो दिस इज sec u, y equal to sec u, where u is equal to e raised to x।
You have to decide looking at the outer function. Alright? So whenever y is a function of u and u is a function of x, y becomes a composite function of x. Alright? And जो स्टैंडर्ड फंक्शन है और कंपोजिट फंक्शन है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है. स्टैंडर्ड में जहां x आएगा, कंपोजिट में वहां u आएगा. दे आर ट्विन्स, दे आर सिमिलर. आउटर फंक्शन साइन होगा तो साइन u बनेगा, कॉस होगा कॉस u बनेगा, tan होगा tan u बनेगा, साइन इनवर्स होगा साइन इनवर्स u बनेगा. इट इज द आउटर फंक्शन विच मैटर्स. कंटिन्यूइंग फर्दर. क्या है आउटर फंक्शन? साइन इनवर्स. सो दिस इज साइन इनवर्स u वेयर u इज इक्वल टू 3x. क्या है आउटर फंक्शन? tan इनवर्स. सो दिस इज tan इनवर्स u वेयर u इज इक्वल टू x स्क्वायर. What is the outer function? Cosec inverse. So this is cosec inverse u where u is equal to 1 by x. What is the base here? E. जब base E होगा तो हमारे पास e raised to x है ना स्टैंडर्ड फंक्शन. हमारे पास e raised to x है स्टैंडर्ड फंक्शन. e raised to x का कंपोजिट बनेगा e raised to u. तो ये e raised to x नहीं है, e raised to u है. दिस इज e raised to u where u is equal to sec x. सो जब याद रखेंगे जब भी बेस e होगा e raised to u बनेगा. बेस जब भी e होगा या तो e raised to x या तो e raised to u. अब यहां पे बेस क्या है? a है. सो दिस इज नॉट a raised to x, दिस इज a raised to u where यहां पे बेस है 3. तो ये 3 raised to x नहीं है, 3 raised to u है where अभी याद रखेंगे जब भी बेस e होगा e raised to u बनेगा, a होगा a raised to u बनेगा, 3 होगा 3 raised to u बनेगा, 2 होगा 2 raised to u, 5 होगा 5 raised to u and so on. You have to look at the outer function, alright, and not the inner function. Next, 11th. क्या है आउटर फंक्शन? log. तो हमारे पास log x है ना फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन log x है तो कंपोजिट होगा log u. तो यहां पे ये log x नहीं है, log u है where अगर बाई चांस यहां पे log sin x होता तो भी log u ही बनता. log sin x होगा, आउटर फंक्शन ही देखना है. इंस्टेड ऑफ u cos x u would have been sin x. अब इसको कंपेयर करो, एग्जाम्पल 2 एंड 11 को कंपेयर करो. दे आर सिमिलर बट डिफरेंट. यहां पे आउटर फंक्शन क्या है? cos, तो लिखने का cos u. यहां पे आउटर फंक्शन है log, तो लिखने का log u. इट इज नॉट द इनर फंक्शन, द आउटर फंक्शन विच मैटर्स. स्क्वायर रूट ऑफ cot x. अगेन स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है हमारे पास रूट एक्स. हमारे पास फंक्शन है रूट एक्स. रूट एक्स का कंपोजिट होगा रूट यू. तो ये रूट एक्स नहीं है, रूट यू है. सो y इक्वल टू रूट ऑफ यू वेयर u इज इक्वल टू cot x. कंपेयर करो अगेन थर्ड एग्जांपल एंड
12th एग्जाम्पल, ये क्या है, रूट ऑफ कॉट एक्स। तो यहां पे पहले बोलते हैं रूट, तो लिखने का रूट यू। यहां पे पहले बोलते हैं कॉट, तो लिखने का कॉट यू। आई एम गिविंग यू सिमिलर एग्जांपल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। नेक्स्ट 13th, this is standard function is there x square, x square का कंपोजिट फंक्शन होगा u square। ये x square नहीं है, tan इनवर्स x का स्क्वायर है। सो जब भी होल स्क्वायर आएगा तो u square लिखने का, सो y will become u square where u is equal to tan inverse x। sec cube x can be written as sec x the whole cube। so जब भी होल स्क्वायर आएगा u स्क्वायर लिखने का, होल क्यूब आएगा तो u क्यूब लिखने का, where u is equal to sec x। अब याद रखेंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा यानी कि होल स्क्वायर आएगा तो u स्क्वायर लिखने का, होल क्यूब आएगा तो u क्यूब लिखने का, होल क्यूब आएगा तो यू क्यूब, यू ट्यूब नहीं, होल क्यूब आएगा तो यू क्यूब। ऑलराइट, होल रेस टू 3/2 आएगा तो यू रेस टू 3/2। इसमें होल रेस टू 3/5 है तो यू रेस टू 3/5 हो जाएगा। दिस इज यू रेस टू 3/5 वेयर हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शन 1/x है, ये 1/x नहीं है, 1/u है। सो दिस इज 1/u वेयर u इज इक्वल टू log x। अब याद रखेंगे, बाहर साइन इनवर्स होगा तो साइन इनवर्स u, tan इनवर्स होगा तो tan इनवर्स u, कोसेक इनवर्स होगा तो कोसेक इनवर्स u, बेस e होगा तो e रेस टू u, a होगा तो a रेस टू u, 3 होगा तो 3 रेस टू u, 5 होगा तो 5 रेस टू u, 2 होगा तो 2 रेस टू u, आउटर फंक्शन log होगा तो log u, रूट होगा तो रूट u, होल स्क्वायर होगा तो u स्क्वायर, होल क्यूब होगा तो u क्यूब, होल रेस टू 4 होगा तो u रेस टू 4, होल रेस टू 3/5 होगा तो u रेस टू 3/5, 1/x होगा तो 1/u, 1/log x is like 1/u। So today we have started with 12th standard portion of composite function। alright, next lecture में जब मिलेंगे तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेने का composite function का वो हम समझेंगे। alright, मेरा रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स है कि ये नेक्स्ट लेक्चर के पहले ये प्लीज रिवाइज कर लेना, कंपोजिट फंक्शन क्या है वो मालूम होना चाहिए, तो ही वो प्रॉब्लम समझ में आएगा। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन टाइप 3 जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू। और फॉर्मूलाज लर्न करना है, प्लीज नोट। ऑलराइट, लर्न द फॉर्मूलाज प्लीज। थैंक यू।